Kharge's call to ban RSS activities, Shiv Sena UBT MP Sanjay Raut stirred political debate by stating if Sardar Patel had become Prime Minister, then RSS BJP would not have been formed. His remarks came amid escalating tensions over Kharge's demand to outlaw the Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS in Karnataka, which has drawn sharp responses from BJP leaders. Raut's comments invokes historical speculation, suggesting that India's political landscape might have evolved differently under Patel's leadership. The controversy adds fuel to the ongoing ideological clash between Congress and BJP over the role and influence of the RSS in Indian politics. देखिए, ये जो भूमिका है आरएसएस में बंदे जाने की, वो सरदार पटेल की भूमिका है और सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैच्यू नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाया है। उनके आदर्श हमारे भी, ये सरदार पटेल जी की भूमिका है जो आदर्श नरेंद्र मोदी जी के कि आरएसएस पर बंदी आनी चाहिए। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो मैंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा, अगर सरदार पटेल जो बार बार बोलते हैं ना, नेहरू नहीं सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं होता और ना उनकी पैदाइश वहां रुक जाती थी। देखिए, ये जो भूमिका है आरएसएस में बंदे जाने की, वो सरदार पटेल की भूमिका है और सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैच्यू नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाया है। उनके आदर्श हमारे भी, ये सरदार पटेल जी की भूमिका है जो आदर्श नरेंद्र मोदी जी के कि आरएसएस पर बंदी आनी चाहिए। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो मैंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा, अगर सरदार पटेल जो बार बार बोलते हैं ना, नेहरू नहीं सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं होता और ना उनकी पैदाइश वहां रुक जाती थी। देखिए, ये जो भूमिका है आरएसएस में बंदे जाने की। BJP National Spokesperson C.R. Kesavan has strongly condemned West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's remarks on the Durgapur gang rape incident, calling her response disgraceful and unpardonable. His reaction comes after Banerjee controversially stated that girls should not go out at night. Following the alleged gang rape of a second-year medical student in Durgapur, Kesavan accused Banerjee of victim blaming and said her governance has become an unending living nightmare for women in West Bengal. He further criticized the Trinamool Congress TMC regime, describing it as a jungle Raja where the safety and dignity of women are under dire threat. The BJP has launched a border attack on Banerjee, with other leaders like Gaurav Bhatia and Sukanta Majumdar also condemning her comments. Mamata Banerjee's anarchic misrule has become an unending living nightmare for the women in West Bengal, and in this TMC Jungle Raj, the security and dignity of our mothers, daughters and sisters of West Bengal is facing a dire threat. Mamata Banerjee notoriously shaming and blaming the rape victim, a medical student of Durgapur, is not just irresponsible and insensitive, it is most disgraceful and unpardonable. Also, given the identity of these barbaric perpetrators of this brutal rape, there is strong suspicion of a sinister motive of the TMC government to sacrifice the safety and security of women in West Bengal on the altar of regressive religious politics of appeasement. The shocking statements by Mamata Banerjee that no woman should go out after midnight is a blatant lie, because according to the Medical College Hospital, the victim had gone out at 8 p.m. Also, the incident did not happen within the campus, it happened outside, so it comes directly under the purview of the TMC government, and it is the responsibility squarely on the Home Minister
the police minister Mamata Banerjee, who has failed, and law and order has completely collapsed and crumbled in the state. And more shockingly, Mamata Banerjee is trying to shield the perpetrators of this brutal rape, and there is a pattern to this, be it the incident in Park Street, Hanskalli, Sandesh Kalli, the horrific rape of a student in RG Kar Hospital. Mamata Banerjee has always sided with the rapists and tried to shame the victims. And why is she shielding the perpetrators of this brutal crime? Mamata Banerjee is morally bankrupt and has completely, is ethically and morally bankrupt and has lost the right to govern. There is a national outrage over this incident and the shocking statements of Mamata Banerjee. But do not expect Mamata Banerjee, who doesn't even have a shred of conscience or shame, to resign. The woman of West Bengal in the coming days will teach a fitting lesson to this jungle raj. NCP-SP leader Rohit Pawar has supported Karnataka Minister Priyanka Kharge's call to prohibit RSS activities in government schools and colleges. Speaking in Mumbai, Pawar said in many Maharashtra universities, RSS ideologies are at the helm, leading to institutional decline. If the same is happening in Karnataka, then Kharge's statement is correct. Kharge had written to Chief Minister Siddaramaiah urging a ban on RSS programs in educational institutions, citing concerns over ideological influence. Pawar's remarks add weight to the growing opposition against RSS presence in public education spaces. The issue has sparked political debate, with the BJP leaders defending RSS role and accusing the Congress-led government of targeting nationalist organizations for political gain. महिला इक्वालिटी को वहां पे महत्व नहीं दिया जाता। देखो, आरएसएस अगर उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आने के बाद वहां पे इस तरीके का काम करती है जिससे एजुकेशन खराब होता है, तो डेफिनेटली आरएसएस हो या कोई भी अलग पॉलिटिकल संस्था हो जिसका एसोसिएशन कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है, तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। आरएसएस की तुलना तालिबान से की जाती है, क्या आप भी मानते हैं आरएसएस की तुलना इस तरह से तालिबान से करना? क्योंकि तालिबान का कहना ऐसे होता है कट्टरपंथी, तालिबान कट्टरपंथी है, पाकिस्तान कट्टरपंथी है। कोई भी धर्म में कोई भी व्यक्ति अगर कट्टरपंथी होता है तो उसका इम्पैक्ट ये उसी धर्म के लोगों पे बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगर मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो या कोई भी समाज के हो, वहां पे कट्टरपंथी विचार जब आता है तो संतों का विचार वहां पे खत्म हो जाता है। जो महान व्यक्ति है, महान पुरुष है, जैसे कि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महात्मा फुले है, उन सब के विचार वहां पे खत्म हो जाते हैं जब कट्टरपंथी आते हैं। तभी तालिबान मतलब कट्टरपंथी विचार कोई भी जगह नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सबका। क्योंकि लगभग 100 साल देखो, महाराष्ट्र के जो सब यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है, वहां पे जो भी डीन्स है या वहां के जो भी प्रमुख है, वो सब आरएसएस के विचार के हैं। और जिस दिन से वो आरएसएस के विचार के लोग वहां पे बैठे, उस दिन से आज तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खराब हुआ। ये मैं नहीं बता रहा, ये केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है। महाराष्ट्र के सब यूनिवर्सिटीज जो है आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बहुत पीछे गई। इसलिए शायद खरगे भाऊ ने वहां पे बोला होगा कि आरएसएस जहां जाते हैं वहां से प्रोग्रेसिव विचार खत्म हो जाता है, रिग्रेसिव विचार आता है। और जब रिग्रेसिव विचार आता है तब वहां पे एजुकेशन को महत्व नहीं दिया जाता, महिलाओं के एजुकेशन का महत्व नहीं दिया जाता, महिला इक्वालिटी को वहां पे महत्व नहीं दिया जाता। देखो, आरएसएस अगर उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आने के बाद वहां पे इस तरीके का काम करती है जिससे एजुकेशन खराब होता है, तो डेफिनेटली आरएसएस हो या कोई भी अलग पॉलिटिकल संस्था हो जिसका एसोसिएशन कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है, तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। आरएसएस की तुलना तालिबान से की जाती है, क्या आप भी मानते हैं आरएसएस की तुलना इस तरह से तालिबान से करना? क्योंकि तालिबान का कहना ऐसे होता है कट्टरपंथी, तालिबान कट्टरपंथी है, पाकिस्तान कट्टरपंथी है। कोई भी धर्म में कोई भी व्यक्ति अगर कट्टरपंथी होता है तो उसका इम्पैक्ट
ये उसी धर्म के लोगों पे बहुत बड़ा होता है। इसलिए अगर मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो या कोई भी समाज के हो, वहां पे कट्टरपंथी विचार जब आता है तो संतों का विचार वहां पे खत्म हो जाता है। जो महान व्यक्ति है, महान पुरुष है, जैसे कि विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महात्मा फुले है, उन सब के विचार वहां पे खत्म हो जाते हैं जब कट्टरपंथी आते हैं। तब तालिबान मतलब Union Education Minister Dharmendra Pradhan inaugurated the Viksit Bharat Buldaton 2025, a nationwide school innovation event, via live stream on October 13. The initiative, organized by the Department of School Education and Literacy in collaboration with the Atal Innovation Mission, Niti Aayog and AICTE, aims to foster creativity, problem solving and innovation among students from classes 6 to 12 across India. Over 3 lakh schools and 35 lakh students are participating in the Buldaton, which aligns with the goals of Viksit Bharat at 2047 and the National Education Policy 2020. Students will present prototypes based on themes like Atmanirbhar Bharat, Swadeshi Vocal for Local and Samriddhi Bharat, with winners to be announced in January 2026. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ यहाँ उपस्थित स्कूल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय संजय कुमार जी, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर आदरणीय दीपक जी, AICTE के चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर सीताराम जी, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अभय जेरे जी, विभाग के अधिकारी आदरणीय श्री साहू, श्रीमती शर्मा और यहाँ उपस्थित मेरे को जैसे बताया गया टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए 3 लाख से ज़्यादा स्कूल में लगभग 25 लाख विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े हुए सभी युवा भाइयों और बहनों को मेरा अनेक अनेक शुभेच्छा। दीपावली थोड़े ही दिन में आने वाला है, मैं दीपावली के अग्रिम शुभेच्छा आप सभी को देता हूँ। माय डियर young friends, what is the importance of today? Few years ago, my Honorable Prime Minister Narendra Modi gave us a clarion call by 2047. जब हमारे देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएगा, शताब्दी बनाएगा, उस समय तक भारत को विकसित करना है। वी हैव टू हैव डेवलप्ड इंडिया। ये होगा कैसे बच्चों? ये आपके बिना हो ही नहीं सकता है। आज जिस यंग फ्रेंड्स मेरा जो 12 में है उसकी आयु 18 ईयर होगा, 18 ईयर प्लस 22 ईयर मिला दीजिए, ये होगा 40 ईयर्स। 40 ईयर्स की सबसे हाईएस्ट एज लिमिट होगा 40 ईयर। आज जो क्लास 6 में है, जिसकी उम्र आज 12 है, उसकी 12 प्लस 22 ये होगा 34। 34 टू 40 ये जो एज ग्रुप रहेगा और आने वाले इसी साल से लेके आने वाले 22 साल तक मित्रों, ना केवल भारत की ही आवश्यकता को आप लोग पूरा करोगे, दुनिया की आवश्यकता को, दुनिया की रिक्वायरमेंट को। यू ऑल आर गोइंग टू क्रिएट न्यू हिस्ट्री, न्यू मॉडल, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर एंटायर वर्ल्ड, एंटायर ह्यूमैनिटी। ये आपसे अपेक्षा है, मेरा भरोसा है। मेरे भारत के बच्चे, मेरे यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे, आप ही के जैसे उम्र में कभी अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता की नौका पे बैठ के आसमान में उड़ने वाला रॉकेट को देखा था, तभी तो बड़े रॉकेट साइंटिस्ट बन पाए, तब तो दुनिया के सबसे बड़ा विज्ञानी बन पाए। यू ऑल आर वेरी प्रिविलेज एंड वेरी इन एडवांटेज पोजिशन। यू आर इन ए वेरी हाई पेडिस्टल। You all must be thankful to Honorable Prime Minister Narendra Modi. He envisioned a new model, Atal Innovation Mission. Through this hackathon, मेगा स्कूल इनोवेशन इवेंट आज हम आयोजन किए हैं, बिल्डाथन 2025। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ यहाँ उपस्थित स्कूल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय संजय कुमार जी, अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर आदरणीय दीपक जी, AICTE के चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर।
Delhi Chief Minister Rekha Gupta attended the final match of the inaugural Archery Premier League APL at the Yamuna Sports Complex and expressed immense pride over India hosting the prestigious event for the first time. She remarked that it was a proud moment not only for the nation but especially for Delhi as the capital played host to players from across the globe. Highlighting archery as an ancient Indian sport, she praised the skill and dedication of Indian archers and commended the organizers for selecting Delhi as the venue. Gupta emphasized the importance of such international sporting events in promoting cultural heritage and athletic excellence and voiced her desire to see more global tournaments held in the city. भारत में वर्ल्ड में आर्चरी प्रीमियर लीग का होना हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और विशेष रूप से इसका दिल्ली में होना मेरे लिए और भी मुझे खुशी का पर्व मुझे महसूस हो रहा है जब पूरे विश्व से प्लेयर्स यहाँ आए और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ पर अपने खेल की दी है। आर्चरी हमारा एक बहुत ही एशियंट गेम भी है और इसमें महारत भी हासिल है हमारे यहाँ के प्लेयर्स को। पर शानदार प्रेजेंटेशन यहाँ हुआ, अलग अलग देशों के आए हुए प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा यहाँ खेला और मैं बहुत बधाई देती हूँ आयोजकों को जिन्होंने दिल्ली को चुना इस आयोजन के लिए और देश भर दुनिया भर के प्लेयर्स को यहाँ लेकर के आए। थैंक यू सो मच और सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। हम चाहेंगे कि दिल्ली में ऐसे इवेंट और भी हों और हम सभी अपने प्लेयर्स को मोटिवेट भी करें और सपोर्ट भी। भारत में वर्ल्ड में आर्चरी प्रीमियर लीग का होना हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और विशेष रूप से इसका दिल्ली में होना मेरे लिए और भी मुझे खुशी का पर्व मुझे महसूस हो रहा है जब पूरे विश्व से प्लेयर्स यहाँ आए और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ पर अपने खेल की दी है। आर्चरी हमारा एक बहुत ही एशियंट गेम भी है और इसमें महारत भी हासिल है हमारे यहाँ के प्लेयर्स को। पर शानदार प्रेजेंटेशन यहाँ हुआ, अलग अलग देशों के आए हुए प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा यहाँ खेला और मैं बहुत बधाई देती हूँ आयोजकों को जिन्होंने दिल्ली को चुना। Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde was felicitated with the Samashne Purasar Social Sneha Award during a ceremony held at Tilak Smarak Mandir in Pune on October 12. The event was organized by the Brahmin Jagruti Seva Sangh to mark its Foundation Day and was attended by dignitaries and social leaders from across the state. The award was presented by Sri Danyaraj Manik Prabhu Maharaj of the Manik Prabhu Sansthan, Karnataka, in recognition of Shinde's contributions to public welfare and social service. In his address to the gathering, Shinde emphasized the importance of community-driven initiatives and praised the efforts of the Human Awareness Service Association and similar organizations in fostering social harmony. The ceremony also included the distribution of other awards such as Samaj Bhushan and Yuva Gaurav, celebrating individuals who have made notable contributions in various fields. लाडकी बहीण योजना बंद होणार आहे, लाडकी बहीण योजना असं होणार तसं मी सांगतो। आता लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ ही ओळख या एकनाथ शिंदेला महाराष्ट्रात मिळालेली आहे, त्यामुळे लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही। आणि आता स्वामीजी पण आहेत आणि भगरे गुरुजी पण आहेत, त्यामुळे भगरे गुरुजी नंतर पकडतील मला, बोले तुम्ही बोलला होतात, पण मी जे बोललो ते करतो आणि जे होणार आहे तेच बोलतो। एकदा शब्द दिला की मग माघार नाही, हे बाळासाहेबांनी हेच शिकवलं आम्हाला। धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी देखील तेच शिकवलं आणि म्हणून बाळासाहेबांनी देखील कधी जातपात पाहिली नाही। आज आपला ब्राह्मण समाजाचा सेवा संघाचा कार्यक्रम आहे म्हणून सांगतो, मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री केलं त्या काळामध्ये। लाडकी बहीण योजना बंद होणार आहे, लाडकी बहीण योजना असं होणार तसं मी सांगतो। आता Former leader Rakesh Tikayat
addressing a gathering of farmers in Shravasti, voiced a strong criticism against the government over the ongoing shortage of DAP, diammonium phosphate, fertilizer and the treatment of protesting farmers. He alleged that farmers are being subjected to lathi charges simply for demanding essential agricultural inputs. Tikayat further claimed that those who share such incidents on social media risk having their accounts suspended, questioning whether the country is facing an undeclared emergency where dissent is being stifled. He emphasized that farmers are still not receiving fair prices for their produce and called for unity among the farming community to resist these challenges. Tikayat's remarks come amid growing concerns over fertilizer availability and the border demand for a legal guarantee on minimum support price MSP. किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसको, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर मिले। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं, तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट है वहाँ पर आगरा में, और किसान बिल भी दे रहा और उसके बाद में भी वो उस पर पैसे काटू जा। तो प्राइवेट कंपनी का हाल वो देखो। फसलों के दाम है नहीं, एमएसपी गारंटी की हमने बात करी, वो देते नहीं। क्या खरीद पूरी हो रही? जो यहाँ किसान धान और गन्ना ले रहा, क्या उसके भाव ठीक मिल रहे? यही सारे इशू है भाई। इकट्ठे हो, अपने आंदोलन की तैयारी करो, और जिस हिसाब से पंचायत हो रही है, पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें चल रही है। प्रधानमंत्री को कम हुई है जीएसटी, बहुत छूट। कुछ मिली आपको छूट? कुछ नहीं भाई, किसी ने कुछ खरीदना हो तो बताओ, और उसको छूट मिली हो। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, जहाँ छूट मिलनी नहीं। किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसको, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर मिले। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं, तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट है वहाँ पर आगरा में, और किसान बिल भी दे रहा और उसके बाद में भी वो उस पर पैसे काटू जा। तो प्राइवेट कंपनी का हाल वो देखो। फसलों के दाम है नहीं, एमएसपी गारंटी की हमने बात करी, वो देते नहीं। क्या खरीद पूरी हो रही? जो यहाँ किसान धान और गन्ना ले रहा, क्या उसके भाव ठीक मिल रहे? यही सारे इशू है भाई। इकट्ठे हो, अपने आंदोलन की तैयारी करो, और जिस हिसाब से पंचायत हो रही है, पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें चल रही है। प्रधानमंत्री को कम हुई है जीएसटी, बहुत छूट। कुछ मिली आपको छूट? कुछ नहीं भाई, किसी ने कुछ खरीदना हो तो बताओ, और उसको छूट मिली हो। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, जहाँ छूट मिलनी नहीं। किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसको, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर मिले। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं, तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट। Major General A.K. Sharma speaking at the Swabhiman rally held at Narangi military station in Guwahati emphasized the emotional and cultural significance of the event. He stated we organized this event as the Swabhiman rally to reconnect with our veteran community, ex-servicemen, Veer Naris and Veer Matas, who are all part of our extended family. The rally aimed to honor the sacrifices of former military personnel and their families while strengthening bonds between serving soldiers and veterans. It also
showcased welfare initiatives and support systems for ex-servicemen, reinforcing the Army's commitment to those who have served the nation with valor and dedication. I've hardly got anything to say. Today, we had organized this veterans rally. We named it the Swabhiman Rally. It was basically to meet our veteran community, the ex-servicemen, the Veer Naris, the Veer Matas, because they're part of the family. And they come from a lot of remote locations. We have tried to give them all the facilities, all the issues which they may have. We have tried to address all of them here. In case anybody has any problem with their documentation, we got the record offices. Anybody has got problem with their ECHS cards or ECHS polyclinics, any issue which they have faced, we have got the ECHS polyclinics here. We got the cards, making system available here. We connected to the overall all India based Indian Army. That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.